Hello, viewers. Welcome back with another interesting Knowledge Pearl session by BLK Max Hospital. Today, we have Dr. Deepak Chaudhary, who is the Director and HOD of Arthroscopy and Sports Medicine Center at BLK Max Hospital. Also, we have Dr. Shiv Choksi, who is a consultant at BLK Center for Arthroscopy and Sports Medicine. My name is Dr. Suhas Parnami, and today we will be discussing a very common problem which is happening these days is shoulder pain. So, welcome. So, we are seeing that these days there is a increased incidence of shoulder pain. So, what do you think, Dr. Deepak? What are the major causes? What are the reasons of shoulder pain in elderlies? Shoulder pain, yes, the incidence is increasing for the past few months, a trend that we have observed at our hospital. And one of the commonest cause of pain in elderly patients is that there is a tendons. I'll show you this model. This is the shoulder joint model, and these are the tendons which are inserted over the shoulder joint. So with age, as the patient ages, this shoulder joint also undergoes wear and tear with aging. And once it undergoes wear and tear, these are the bones spikes that they press on these muscles, and these muscles gradually they become under, because of attrition, they become degenerate and very weak. And then with very sudden jerk or even with no jerk, they can often tear. This is known as rotator cuff tear, and injury which is often misdiagnosed, and people are treated just like frozen shoulder. So the advice is, especially in elderly patients, that if their pain is persisting for more than 4 to 6 weeks, they must consult a shoulder surgeon who can properly diagnose them and treat them. Because in the early stages, there are stages of this tendon tear. Initially, it is only inflammation. So in the early stages, it can be treated by conservative measures, physiotherapy, this medicines and anti-inflammatory medicines, and often some injections and all. But at a later stage, once a tear occurs, and especially when it retracts, then the only option left is the surgery, rotator cuff surgery. Though it has become again very predictable surgery and with good clinical outcomes, but it can be prevented if the patient comes to us at an early stage. So we have seen over the past few months that because every time this corona happens and patients do not come to the hospital fearing that they might get infected, because of the government guidelines also, their tear gradually extends. So they are coming to us with large tears which require only surgical intervention. So what we have seen is that arthroscopic rotator cuff repair, which we were doing 4 to 5 every month, over the past 1 or 2 months, the number has increased significantly to about 10 surgeries every month. So this is a substantial increase, and with proper patient education, it can be prevented, this tears from progressing in the early stages. Right. Dr. Shiv, the shoulder pain incidence is also increasing in young patients. What are the causes for that? And is it similar to elderlies, or if there is some other reason for it? So the incidence for shoulder pain in young patients are also increasing. Young patients, the shoulder pain is attributed more towards traumatic or injury related. That could be more due to if they are involving into overhead activity games like throwing a ball, cricket, or any sport which involves overhead throwing, or also in gym goers. So what happens is when they start gymming, or when they are getting back to gym after a very long time, say after lockdown or after a COVID gym shutdown, if they get back to gymming, there is a tendency to get into overzealous exercising and weightlifting, which causes the injury to the same tendons which cause problem to the elderly. But here in young patients, it's more towards over exercising the same tendons which cause the pain. So that could be the tendinitis or overstrain of the bicep tendon or the rotator cuff tendons. Okay. And what are the common diagnostic tests, or a common diagnosis can be interpreted for shoulder pains? What is the way of
finding out that person is suffering from a So first and foremost is to, as sir said, to visit a shoulder specialist or to visit a doctor who deals with such cases. Clinical examination supersedes any of the diagnostic measures anywhere for any injury, and more so for shoulder, because it's a very shoulder, the diagnostic tools may not be the exactly correct diagnostic, might not help you exactly with the diagnosis, but definitely clinical examination by a specialist followed by x-rays or MRIs can take you through the correct diagnosis of such problems. and the patient can be treated appropriately. Absolutely. Okay. Dr. Shiv, the next question which viewers have is what is shoulder dislocation? Right. So shoulder dislocation is a very common problem that young population, usually we see young population facing. So shoulder joint, as we know, is a ball and socket joint. So there's a ball of the humerus, the arm bone, and there's a socket, a rather shallow socket of the glenoid, of the shoulder blade bone. So it's like a golf tee, like how you have the golf ball over the tee. So the tee is very shallow and a narrow cup, and the ball is a rather broad ball over the. So it tends to, it is a very highly mobile joint. So you get full mobility. It's the most mobile joint that a body has. You know, it can take, you can overhead, you can take it in any direction. At the same time, it comes with stability factors, or chances of instability, chances of dislocation are very high. So that's how the shoulder joint, the ball of the shoulder joint pops out of the cup, and that's what the shoulder dislocation is. तो इसका सर डिसलोकेशन होने का सबसे कॉमनेस्ट कॉज इज इंजरी, Injury. एनी फॉर्म ऑफ Traumatic. इंजरी. Yes, traumatic. तो सबसे पहला फीचर पेशेंट को क्या फील होता है जब उसका अगर शोल्डर डिसलोकेट हो, या वो कह सके कि ये शोल्डर डिसलोकेशन है? पहला फीचर क्या है? सबसे पहले तो पेन, he feels something is not normal, the abnormal thing has happened to his joint. He cannot move his shoulder joint. There will be an obvious deformity, लटका हुआ शोल्डर, या आपको बाहर नॉर्मल कंटूर जो शोल्डर का होता है, दैट इज लॉस्ट. पॉपिंग आउट ऑफ द जॉइंट पॉप आउट हो गया. कुछ काम नहीं कर पा रहे, हाथ हिल नहीं रहा. इट्स कंप्लीटली लॉक्ड. वो he'll just visit the doctor with a hand like this. तो ये शोल्डर डिसलोकेशन, क्वेश्चन ये है कि शोल्डर डिसलोकेशन सिर्फ ट्रॉमेटिक होता है या ये और भी कोई तरीके से? नहीं, और भी हो सकता है. सो यूजुअली इट स्टार्ट्स विद अ ट्रॉमेटिक इंसिडेंस. अच्छा. अदरवाइज पर अगर उसको ट्रीट नहीं कराया गया, अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं ली उसने पेशेंट ने, सो देन इट बिकम्स अ रिकरेंट और अ हैबिचुअल डिसलोकेटर. सो वंस अ यंग पेशेंट डिसलोकेट्स अ शोल्डर, देयर इज 87% दैट ही इज गोइंग टू डिसलोकेट इट अगेन if not treated properly. And if the patient has dislocated twice, there are 100% chances that he's again going to dislocate anytime. फिर से हो सकता है. अच्छा. तो डॉक्टर दीपक, अगला सवाल व्यूअर्स का ये भी है कि शोल्डर पेन या शोल्डर इंजरी को ट्रीट करने के क्या क्या तरीके हैं? हम उसको क्या पेशेंट को बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं कि उसका पेन या इंजरी ठीक हो? जैसा आपने पहले भी कहा था कि मेडिकल और सर्जिकल, थोड़ा विस्तार से अगर बताएंगे तो व्यूअर्स के लिए बिल्कुल होगी समझने में. देखो, सबसे पहले तो पेशेंट का जब शोल्डर पेन हो गया, तो अगर जैसे मैंने कहा कि अगर पेशेंट का पेन 4 to 6 वीक्स से ज़्यादा परसिस्ट करता है, दैन ही मस्ट कंसल्ट ए शोल्डर स्पेशलिस्ट. और जब एक शोल्डर स्पेशलिस्ट के पास जाएगा तो डेफिनेटली वो अपना डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन करेगा, अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट कराएगा, तो एक प्रॉपर डायग्नोसिस पे पहुँचेगा. अब सारा ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि व्हाट इज़ द डायग्नोसिस इन दैट पर्टिकुलर केस. कई जस्ट अगर जैसे ये यंग लोगों में मान लें कि चलो अगर डिसलोकेशन है और यंग पेशेंट में है, तो उसका फिर सीधा ट्रीटमेंट ही बेस्ट आर्थ्रोस्कोपिक मेजर्स है कि आर्थ्रोस्कोपिकली उसको स्टेबलाइज कर दिया जाए. नहीं तो वो अगर उसको नहीं स्टेबलाइज किया जाता तो शोल्डर बार बार डिसलोकेट, जैसे डॉक्टर शिव ने कहा, होता रहता है, और हर बार डिसलोकेशन के बाद डैमेज भी अंदर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है. लेकिन अगर यही चीज़ अगर डिसलोकेशन नहीं है, यंग लोगों में सिर्फ टेंडनाइटिस, बाइसेप्स टेंडन होता है, उसका खिंचाव है या कुछ है, तो वो अगर ठीक स्टेज पे आ गया है तो उसका ट्रीटमेंट कंजर्वेटिव भी है, जिसमें आइसिंग, दवाइयाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी, फिजियोथेरेपी मोडेलिटीज़ और कुछ स्पेसिफिक तरह की एक्सरसाइजेज पेशेंट को सिखाई जाती हैं. तो ये सब डिपेंड करता है कि डायग्नोसिस क्या है. तो जैसे यंग पेशेंट में सबसे कॉमन
ये टेंडनाइटिस होता है बाइसेप्स का या डिसलोकेशन है, तो बाइसेप्स टेंडनाइटिस है तो शुरू में कंजर्वेटिव मैयर्स है, अगर डिसलोकेशन है तो सर्जरी आर्थ्रोस्कोपिक है। अब इसी तरह से अगर हम ओल्ड एज में आ जाएं तो ओल्ड एज में जैसे ये रोटेटर कफ के टेंडन्स हैं, जब तक ये टूटते नहीं हैं तो ये इनिशियल स्टेज पे हैं, टेंडनाइटिस की स्टेज पे हैं। तो ये टेंडनाइटिस की स्टेज अगेन कंजर्वेटिवली मैनेज हो सकती है, जैसे मैंने कहा आइस पैक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, फिजियोथेरेपी मोडालिटीज़, किसी किसी केस में अंदर स्टेरॉयड का या पीआरपी का इंजेक्शन दिया जाता है, तो उस स्टेज पे ये मैनेज हो सकती है कंजर्वेटिवली। लेकिन अगेन अगर वो टीयर की स्टेज पे आया है और टीयर बड़ा है अपनी जगह से टूट के, जैसे यूजली क्या होता है जब पेशेंट डिलेड स्टेज में आता है तो ये टेंडन जब यहाँ अटैच होता है वो यहाँ की बजाय वो टूट के थोड़ा सा पीछे को चला जाता है। पीछे का मतलब है कि ये यहाँ पे है, यहाँ की जगह ये इधर आ जाता है। अच्छा। जब इस स्टेज पे पेशेंट यूजली हमारे पास आते हैं तो फिर किसी भी तरह की दवाई या फिजियोथेरेपी काम नहीं कर सकती। वो टेम्पोरेरी रिलीफ ज़रूर दे देगी बट अंदर से पैथोलॉजी नहीं ठीक होगी। तो उसको अगर हमने जड़ से जैसे अगर ठीक करना है तो फिर ये आर्थ्रोस्कोपी का बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट है, आधे पौने घंटे का, जिसमें इसको टेंडन को खींच के वापस अपनी जगह पे बिठा दिया जाता है। और 4-6 हफ्ते की बात है, उसको एक स्लिंग में रखा जाता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी मूवमेंट्स इंकरेज की जाती हैं और 3 महीने में लगभग सारे पेशेंट्स नॉर्मल हो जाते हैं। फिर भी उनमें जो खिलाड़ी लोग होते हैं उनको हम कहते हैं भाई अपनी गेम्स में जाने से पहले 5-6 महीने और स्ट्रेंथनिंग करके अच्छा वो होके जाओ। अब एक और कैटेगरी पेशेंट्स की है जब ओल्ड एज में आर्थराइटिस भी साथ में हो जाए, जब ज़्यादा रोटेटर कफ टीयर हो गया या किसी वजह से जॉइंट का कंप्लीट आर्थराइटिस हो जाता है, जैसे नी जॉइंट का कंप्लीट आर्थराइटिस हो गया। हालांकि शोल्डर जॉइंट वेट बेयरिंग जॉइंट नहीं है तो इसलिए आर्थराइटिस की संभावना या चांसेस कम होते हैं, लेकिन पेशेंट्स कई ऐसे आते हैं जिनको आर्थराइटिस हो जाता है। तो आर्थराइटिस अगेन अर्ली स्टेजेस में है तो उसको हम कंजर्वेटिवली दवाइयों से और फिजियोथेरेपी से ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर लेट स्टेज में आर्थराइटिस है, ओल्ड पेशेंट है, 60-65 से ऊपर है, तो उन ऐसे केसेस के लिए शोल्डर रिप्लेसमेंट एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। तो इस तरह से ये सर्जरीज 2-3 तरह की सर्जरीज हैं, आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज हैं, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, या सिर्फ क्लीनिंग की भी एक सर्जरी है जो किसी किसी केसेस में काम आती है। तो कौन से पेशेंट में कौन सी सर्जरी होनी है, ये किस स्टेज पे पेशेंट किस डायग्नोसिस के साथ गया है उस पर डिपेंड करता है, और उसके सिम्टम्स कितने हैं और वो उसकी डेली एक्टिविटीज़ में कितनी डिसेबिलिटी कॉज कर रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स हमें कंसिडर करने पड़ते हैं बिफोर सर्जरी या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से पहले। जी सर, सो ये कहना होगा कि जो मरीज़ हैं जो मेडिकली मैनेज भी हो सकते हैं, सर्जिकली मैनेज भी हो सकते हैं, और हर मेडिकल मैनेजमेंट को सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती, और ज़रूरी नहीं है कि हर सर्जरी जिसको रिक्वायरमेंट है उसको मेडिकली ठीक हो पाए। ये समझना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल आपके इस जवाब से निकल के आया सर, व्यूअर्स का ही होगा, कि रिकवरी में एक मरीज़ को मेडिकली या सर्जिकली कितना समय लग सकता है सर, ये जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं, ये अगेन डिपेंड करता है कि हम किस कंडीशन को ट्रीट कर रहे हैं। जैसे अगर हमने डिसलोकेशन की ट्रीट की आर्थ्रोस्कोपिकली तो पेशेंट को सर्जरी के बाद एक स्लिंग दिया जाता है जो 4 से 5 हफ्ते होता है। 4 से 5 हफ्ते जो स्लिंग है उसमें पेशेंट अपने रोज़मर्रा के बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे लिखित में कुछ लिखना, टाइपिंग करना, खाना खाना, जो डेली एक्टिविटीज़ होती हैं वो कैरी आउट हो जाती हैं। ओनली थिंग उसको रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि उसको हाथ 90 डिग्री से ऊपर नहीं ले जाना होता। एक बार 3-4 हफ्ते हो जाते हैं, उसका 4 हफ्ते बाद स्लिंग हट जाता है, फिर उसको हमारे फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं चारों डायरेक्शन में उसकी मूवमेंट्स ले आते हैं अगले 3-4 हफ्ते में, और उससे अगले 3-4 हफ्ते में जो है उसको एक स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम दिया जाता है, जिससे कि 3 महीने में ऑलमोस्ट कंप्लीट रिकवरी हो जाती है। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा कि जो लोग गेम्स खेलते हैं, हैवी कॉन्टैक्ट एथलीट्स हैं, फुटबॉल खेलनी है या वॉलीबॉल खेलनी है, बास्केटबॉल, कुश्ती कर खेलनी है, उनको हम 5-6 महीने कहते हैं अभी रुक के ही आप गेम्स में जाना। इसी तरह से रोटेटर कफ है, उसका भी लगभग सिमिलर है, जैसे कि भाई 4-5 हफ्ते तक स्लिंग रहेगा, उसके बाद अगले फेज़ में मोबिलाइजेशन रहेगा, और उससे अगले 3-4 हफ्ते में स्ट्रेंथनिंग रहेगी। अब जो कंजर्वेटिव की आप बात कर रहे हैं कि उसको कितना टाइम लग सकता है, तो ये फ्रॉम कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। कईयों की बिल्कुल सिंपल जैसे चोट होती है, सिंपल टेंडनाइटिस है, 3 हफ्ते में ठीक हो सकता है। लेकिन कईयों में थोड़ा सा ज़्यादा पुरानी चोट, वो क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें एक्यूट फ्लेयरिंग हो जाती है, थोड़ा सा पहले एक्यूट कंडीशन सबसाइड हो फिर क्रॉनिक, तो 4 से 6 हफ्ते भी लग सकते हैं। तो ये कंडीशन से कंडीशन पे डिपेंड करता है, पेशेंट टू पेशेंट भी बहुत वेरिएशन होती है। कई बड़े मोटिवेटेड पेशेंट्स होते हैं, कई उतने उनमें ड्राइव नहीं होती फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेस करने की, तो ये सारा पेशेंट टू पेशेंट और कंडीशन टू कंडीशन थोड़ा वेरी करता है। जी,
एक आखिरी सवाल व्यूअर्स का डॉक्टर दीपक, क्या शोल्डर पेन का इंसिडेंस जो जो लग रहा है बढ़ गया है, उसके वेरियस रीज़न आपने बताया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो कुछ आंकड़े अगर हम व्यूअर्स को अगर हम बता सकें कि आपके एक्सपीरियंस में जो आपने मरीज देखे हैं और जो आपके पास आ रहे हैं बीएलके मैक्स सेंटर में जो आ रहे हैं, उनके हिसाब से आंकड़े हो क्या गए हैं सर? नहीं, जैसे डॉक्टर शिव ने भी कहा और मैंने भी बताया कि देखो, ये जो अभी बीच के ये जो पीरियड्स हुए हैं कोविड के, जिन दिनों पेशेंट्स अपने घर से बाहर नहीं निकले दिखाने के लिए और घरेलू अपने आप ही ट्रीटमेंट ले लिया या लोकल एक जनरल प्रैक्टिशनर के पास चले गए, तो कई केसेस निगलेक्ट हुए हैं। जैसे खासकर रोटेटर कफ में मैंने कहा, जैसे कि वो कंडीशन प्रोग्रेस होती है, पहले वो इन्फ्लेमेशन की स्टेज होती है, टेंडनाइटिस, फिर धीरे धीरे पार्शियल टीयर होता है, फिर कंप्लीट टीयर होता है। तो होता क्या है कि इस पीरियड में जैसे 1.5-2 महीने पेशेंट घर से बाहर नहीं निकला, उसकी डिजीज़ प्रोग्रेस होती रही, वो शोल्डर स्पेशलिस्ट के पास नहीं गया, तो अचानक संख्या, जैसे मैंने कहा कि पहले हम अगर रोटेटर कफ की 5 सर्जरीज महीने में करते तो अब 10 के करीब कर रहे हैं। तो ये इंसिडेंस सडनली बढ़ा इसलिए क्योंकि उन दिनों पेशेंट्स ने अपना प्रॉपर इलाज नहीं कराया। नंबर्स भी बढ़े, इंटेंसिटी भी बढ़ी है, सिवियरिटी भी बढ़ी है। और दूसरा, जो खिलाड़ियों में होती हैं चोटें, डिसलोकेशंस वगैरह, वो इसलिए होती हैं कि देखो आजकल हर लोग जो है वो कुछ ना कुछ गेम्स वगैरह में खेलना चाहता है और ओवरहेड एक्टिविटीज़ बड़ी कॉमन है, तो ओवरहेड एक्टिविटीज़ में ये चोटें बहुत ही कॉमन है। तो और कई बार होता है वो प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना गेम्स में चले गए, तो वहाँ पे फिर वो चोटों की संभावना बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली इन दिनों में ये सब चीज़ें हुई हैं जिससे कि ये इनके आंकड़े ऑलमोस्ट डबल हुए हैं पिछले कुछ टाइम में। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से लॉकडाउन नहीं है, पैंडेमिक धीरे धीरे रिसीड हो रहा है, तो ये नंबर्स थोड़े से कम आने शुरू होंगे क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी लोगों की बढ़ गई है, एक्सरसाइजेस शुरू हो गई हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ भी करे पर स्ट्रेन ना करते हुए धीरे धीरे, अगर कोई एक्सरसाइज बहुत टाइम से नहीं कर रहा तो एकदम से एकदम से ये नहीं किया, ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप करें। लेकिन अगर फिर भी ज़रूरत पड़ती है तो हाईली ट्रेन्ड एंड मोटिवेटेड टीम with equipped and logistics is available at BLK Max Center of Arthroscopy and Sports Medicine. Thank you, Dr. Deepak and Dr. Shiv. Thank you, Dr. Before Swas. we end this, just if you have few points you want to share with viewers. My only thing is that mobility जॉइंट की, किसी भी जॉइंट, चाहे वो नी जॉइंट हो चाहे कोई और जॉइंट, शोल्डर जॉइंट में भी मोबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोबिलिटी के साथ स्टेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट है और इन सब चीज़ों का आपस में एक वो रहे, संतुलन रहे, इसके लिए प्रॉपर एक्सरसाइजेज, प्रॉपर वे ऑफ लाइफ, आदमी को अपना रूटीन अच्छा रखना चाहिए जिसमें मसल्स की अच्छी टोनिंग हो सके, अपर बॉडी लोअर बॉडी सभी की अच्छी सी एक्सरसाइज हो सके, और इन जनरल आपकी एक हेल्थ प्रमोट करती हैं ये एक्सरसाइजेज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लिसन टू योर बॉडी। कहीं पे पेन हो उसे इग्नोर ना करें, कहीं पे भी लगे कि थोड़ी इंजरी है या कुछ है जो परसिस्ट कर रही है, उसको ज़्यादा खुद से ट्रीट करके खुद से इसको खींचने की कोशिश ना करें। एज इट्स देयर इज़ अ वेरी कॉमन सेइंग, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। सो सही समय पे सही इलाज से हो सकता है कुछ ज़्यादा इलाज की ज़रूरत ही ना पड़े, पर सही टाइम पे सही जगह कंसल्ट करने से इट कैन सेव यू फ्रॉम फर्दर डैमेजेस। We were in conversation with Dr. Deepak Chaudhary and Dr. Shiv from BLK Max Arthroscopy and Sports Medicine Center. Stay tuned for more knowledge pearls from BLK Max Hospital. Thank you.